مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر نہال ہاشمی نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت جلد ملک کو بحرانوں سے نکالے گی اور پاکستانیوں کے ہر دل عزیز لیڈر میاں نواز شریف بھی ڈاکٹر سے اجازت ملنے کے بعد پاکستان میں ہوں گے۔ وہ لندن میں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان سے بات چیت کر رہے تھے۔ مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر نہال ہاشمی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاکستان سے لندن کی ٹھنڈی ہواؤں کا جو ہے وہ ٹھنڈی ہواؤں کا سفر انہوں نے کیسے کیا، یہاں پر کیسے مزے کر رہے ہیں، لندن میں آیا کیوں؟ پہلے تو ان سے یہ پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سے ملنے آیا ہوں اور جو یہاں پہ پاکستانی ہیں ان سے ملنے آیا ہوں۔ پاکستان کے عظیم قائد محمد نواز شریف صاحب سے ملنے آیا ہوں، عزیز و قریب دوستوں سے ملنے آیا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سفر لندن کے ساتھ صدیوں کا ہے۔ بابا قوم سے لے کے ہمیشہ لوگ یہاں آتے رہے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ تو ایک یہ میں چونکہ وکیل ہوں تو عدالتوں کی چھٹیاں ہیں جن میں، تو میں پھر اس سلسلے میں پاکستان کے گرم موسم اور لندن کے سرد موسم کی سیاست میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے۔ لندن میں موسم سرد بھی ہے اور گرم بھی ہے، پھر یہاں کی سیاست ایک دائرے میں ہے۔ یہاں کی سیاست آئین اور قانون کے مطابق ہے، یہاں کی سیاست سول سپریمیسی کے ساتھ ہے، یہاں کی سیاست پارلیمنٹ کی بالادستی کے ساتھ ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ۔ پاکستان کی ٹھنڈی سیاست ہو یا گرم، وہ اداروں سے وابستہ ہے۔ ادارے پاکستان کی سیاست کو اپنا رستہ دکھاتے ہیں، پارلیمنٹ رستہ نہیں دکھاتی ہے، سیاسی جماعتیں نہیں دکھاتے ہیں۔ پاکستان کے ادارے زیادہ مضبوط ہیں، شاید پاکستان کی سیاست اتنی مضبوط نہیں ہے۔ تو نہال ہاشمی صاحب، وزیر اعظم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب یہاں پر ہیں، ان کی حکومت بھی آ چکی ہے، کہا جاتا ہے وہ کنگ میکر ہیں، انہوں نے صاحب پھر بھی پاکستان کیوں نہیں جا رہے؟ یہ آپ بہت جلد جائیں گے پاکستان، مگر اس میں 3-4 عوامل ہیں۔ ایک تو ان کی اپنی صحت کا مسئلہ ہے، جو ان کے یہاں پہ اسٹیٹس ہے اس کا مسئلہ ہے۔ پھر وہ مستقبل کے لیے پاکستان آنے والے 50 سال، آنے والے 10 سال کے بارے میں وہ ایک بہت اچھی منصوبہ بندی کریں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 2007-8 میں محترمہ بے نظیر کے ساتھ مل کر انہوں نے میثاق جمہوریت یعنی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا تھا۔ اسی طرح کی آئندہ جو دیکھیں ہم بار بار تجربات سے نہیں گزر سکتے، تو اسی لیے آنے والے دنوں کے لیے ایک نئے نصب العین یا روڈ میپ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو آپ پہ تنقید کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پوری قوم کو ووٹ دو عزت کے نعرے کے پیچھے لگایا اور بعد میں جب موقع آیا تو اس وقت آپ نے آرام سے ان کے ساتھ مل کے پھر حکومت بنا لی۔ دیکھیے، ہم نے کسی کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائی، ہم نے پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے اور آئین پاکستان کے تحت بنائی ہے۔ پارلیمنٹ اور آئین اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم حکومت بنائیں اور ہم عوام کو اس جو عمرانی فتنہ تھی اس حکومت کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجھے امید ہے پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کو ٹھیک کریں گے۔ آپ جیسے لوگ، آپ بڑے پازیٹیو کام کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، اور میں متنبع کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں ان لوگوں کو جو آج پاکستان کو اس مقام پہ لے کے آئیں کہ آپ پاکستان کا پیچھا چھوڑ دیں، آپ جیسے لوگوں کو دیں کہ آپ پاکستان کو نئے ڈگر پہ لے کے جائیں۔ پچھلے ناکام ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے دیکھا کہ نہال ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی سے وہ بھی بہت پریشان ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اور میرے خیال سے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہیں اور یا دوسری پارٹیاں الائز ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم عوام کا اس مسئلے سے عوام کو نکالیں، عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے اعزاز میں پاکستانی کمیونٹی اور ان کے احباب نے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں اسکاٹ لینڈ کی سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر سابق گورنر کا کہنا تھا کہ ان کے پاس عہدہ نہیں، لیکن وہ اوورسیز پاکستانیوں کی آواز ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں خالد وارسی کی رپورٹ۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کے اعزاز میں اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں خوبصورت تقریب سجائی گئی، جس کا اہتمام ان کے دوست احباب اور دیگر کمیونٹی شخصیات نے کیا۔ اس موقع پر چودھری سرور کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری سرور کا کہنا تھا، ہم اوورسیز پاکستان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ہمارے دل ہمیشہ اپنے وطن کے لیے دھڑکتے ہیں۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس اس وقت کوئی عہدہ نہیں، لیکن وہ اپنے پاکستانیوں کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وہ عہدے کے بعد زیادہ متحرک اور خوش ہیں۔ آپ زیادہ خوش نظر آتے ہیں، آپ بڑے ہیپی موڈ میں ہر وقت ہوتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جب کسی عہدے پہ آپ ہوتے ہیں تو انڈر پریشر ہوتا ہے، آپ پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بھی اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں
आप अल्लाह सुब्हान ताला के सामने भी अकाउंटेबल होते हैं कि आपको इतना बड़ा ओहदा दिया है। चौधरी सरवर ने स्कॉटलैंड की बाहिजाब मुस्लिम खातून की इलेक्शन मुहिम के हवाले से खुसूसी इजहार ख्याल करते हुए खातून की जदोजहद को खराज तहसीन पेश किया। इंशाअल्लाह हम उनको काउंसलर बनाएंगे और अल्लाह के फजल करम से हमारी दोनों बहनें हैं 2012 में ग्लासगो सिटी काउंसिल में पहुंची हजाब, इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं की, दे रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज कि आप अगर हम हजाब, उन्होंने कहा हम काउंसलर नहीं बनेंगी लेकिन हजाब जरूर पहनेंगे। चौधरी सरवर का कहना था उनके कायम करता ग्रैंड ओवरसीज क्लब की जल्द ही यूके और यूरोप में तंजीम साजी की जाएगी, जिसका मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत करना, मसाइल के हल के लिए आवाज बुलंद करना है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस मौका पर अजीम कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की कैद पर भारत से मजम्मत करते हुए कहा कि भारत फौरी यासीन मलिक को रिहा करे। वो कश्मीरी लीडर है जिसने अपनी जान को भी खतरे में डाला, जो 20 साल तक कैद व बंद की सौकतें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो कश्मीर की आज़ादी की जंग में उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। तकरीब से सैयद नासिर जाफरी, मलिक गुलाम रब्बानी और चौधरी साबर अली और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेहमानों की पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़ु की गई, जबकि वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली और सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई। मलिक खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन की तरफ से पाकिस्तानी सर्जन और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल के एजाज़ में लुटन के मकामी होटल में इशाए का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की चीदा शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और तिब्बी माहिर डॉक्टर जावेद इकबाल ने इस मौके पर खूबसूरत गुफ्तगू से शुरका को बेहद महसूस किया। देखते हैं ल्यूटन से हमारे नुमाइंदे चौधरी निसाद गुलशन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से आए मारूफ सर्जन और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल को खूबसूरत गुफ्तगू और इस्लाही लेक्चर्स की वजह से न सिर्फ मेडिकल फील्ड बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी बेहद मकबूलियत हासिल है। ल्यूटन में उनके एजाज में APPS की जानिब से डॉक्टर सर्जन गुलाम अब्बास और डॉक्टर सर्जन एहसन खान ने इशाइया का एहतमाम किया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब से गुफ्तगू करते हुए मेजबानों ने डॉक्टर जावेद इकबाल को ल्यूटन आमद पर खुशामदीद कहा और उनके दौरा बरतानिया को पाकिस्तानी कम्युनिटी की नई नस्ल के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया। डॉक्टर जावेद इकबाल ने इस मौके पर अपने तजर्बात और ख्यालात शेयर किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सर्जन इकबाल ने अपने दौरे की तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था कि हमारे पास तरबियत का कोई मरबूत निजाम मौजूद नहीं, जिससे आने वाली नस्ल को खुद से बेहतर बनाया जा सके। सोशल मीडिया ने सारा माहौल ही बदल कर रख दिया है, जिसका असर लोगों की सोच और फिक्र पर पड़ेगा। हमारे पूरी दुनिया के अंदर बिलउमूम और हमारे पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस कोई भी तरबियत का मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है, और तरबियत एक वो एवेन्यू है जिसके ज़रिए से हम ये गारंटी कर सकते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो हमसे बेहतर होगी। तो जो भी दुनिया चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया ने हमारे मिजाज के ऊपर एक बहुत ही डिफरेंट चेंज ले, मैं ये नहीं कहता बुरी चेंज या सही चेंज, मगर एक बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट किस्म का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। इस नई सिनेरियो के अंदर हम किसी कन्वेंशनल तरीके की तरबियत से अपने बच्चों को इसके लिए तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ अरसे के बाद जॉब की मार्केट डिफरेंट होने वाली है, लोगों के सोचने का अंदाज डिफरेंट होने वाला है, उनके रिलेशनशिप की डायनामिक्स है वो डिफरेंट होने वाली है। तो मेरे अपनी ज़िंदगी के कंडक्ट का और काम का एक पर्पज़ ये भी है कि मैं किसी तरीके से वो ट्रेनिंग और टीचिंग का प्रोग्राम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में लेके जाऊँ। तकरीब के दीगर शुरका ने भी इस मौके पर कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। आइडिया वाज टू हाईलाइट के हाउ पेरेंटिंग स्किल्स, हमें हमारी कम्युनिटीज़ को पेरेंटिंग स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये जो न्यू चेंज आई है दुनिया में सोशल मीडिया की वजह से, इसकी वजह से जो पेरेंटिंग चैलेंजेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए इन द न्यू वर्ल्ड, हाउ वी as a parents, as teachers, as community workers, how we can play a positive role. हमने डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर्स बनाए, लेकिन क्या हमने अच्छे इंसान बनाए? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क जो हम सब पे अप्लाई होता है। और जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो और सोशल फैब्रिक को जो बाइंड करती हैं, क्या वो अब इस वक्त में हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, और हम लोग इन चीज़ों को अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में कैसे प्रमोट कर सकते हैं? इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर। हम लोग को बहुत खुशी हुई है आज डॉक्टर जावेद साहब के साथ मिले हैं, बैठे, सब लोगों से मुलाकात हुई है। इट फील लाइक दैट इज़ कि हम लोग अपने घर पे हैं, पाकिस्तान में हैं,
and it's a really good gathering. डॉक्टर जावेद इकबाल को ल्यूटन बारो काउंसिल में विजिट भी कराई गई और उन्होंने काउंसिल की बुक में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। इशाइया में डिप्टी लीडर ऑफ काउंसिल काउंसलर मोहम्मद असलम, प्रोफेसर मुमताज भट्ट, मुबीन रशीद, डॉक्टर एहसन खान, मलिक अनवार के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। चौधरी निसार गुलशन, 92 न्यूज, ल्यूटन। आज़ाद कश्मीर के इलाके ढल महमूद में अल अजीज़िया एजुकेशन कॉम्प्लेक्स एंड जामे मस्जिद के हवाले से एक तारीफी तकरीब मशरकी लंदन के एक मकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत पीर साहबजादा मोहम्मद अदनान कादरी ने की। तफसीलात मशरकी लंदन से सलीम साबरी की रिपोर्ट में। तकरीब में मशहूर कारोबारी और समाजी शख्सियत राजा एजाज, रिटायर्ड मास्टर मोहम्मद रफ़ीक और दीगर अफराद की जानिब से 13 कनाल ज़मीन अल अजीज़िया एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के लिए वक्फ की गई, जबकि राजा एजाज महमूद ने अपने वालिद हाजी गुलाब खान मरहूम की जानिब से ज़मीन के कागजात साहिबजादा मोहम्मद अदनान कादरी को पेश किए। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। पीर मोहम्मद अदनान कादरी ने अपनी खूबसूरत अल्फाज में तलावत कुरान पाक की। सुहेल सलामत ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनक़बत पेश की। स्टेज सेक्रेटरी के फराइज सलीम साबरी ने सर अंजाम दिए। हक दे वलीदा तुसारल के लाओ हो नारा अलीदा। मशहूर एंकर पर्सन अली रजा चौधरी, दिल पजीर, अमजद सैयद, डॉक्टर खालिद सलीम, राजा सिकंदर, राजा परवेज, अख्तर कियानी, सोलिसिटर इम्तियाज राजा, शाकिर कियानी और दीगर ने शिरकत की। और याद रखिए, नेकी जो है, नेकी और भलाई, नेकी एक छोटा सा बीज है कि जिसके लिए कहा यह जाता है कि नेकी करते जाओ, यानी बीज बोते जाओ और आगे गुजर जाओ। जब बहुत तपती हुई धूप होगी ना, तो फिर साहिबान वो दरख्त देंगे जिन दरख्तों को हमने सींचा है, जिन दरख्तों की आमदनी की। तकरीब के मेज़बान राजा एजाज ने अपने खिताब में कहा कि हमारे वालिद हाजी गुलाम खान मरहूम की हमेशा ये ख्वाहिश थी कि इस ज़मीन पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जो कि इंसानियत की भलाई के लिए हो। हमें खुशी है कि हमारे साथ रिटायर्ड हेड मास्टर मोहम्मद रफ़ीक और दीगर अफराद ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के लिए 13 कनाल ज़मीन वक्फ की है, जो एक सदका जारिया है। अजीज़िया एजुकेशनल कम्प्लेक्स और जामा मस्जिद जो हमारे गाँव आज़ाद कश्मीर डाल महमूद में बन रही है, उसके लिए यहाँ एक छोटी सी मैंने दावत की थी। हमारे पीर साहबजादा साहब भी आए हुए थे, तो यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको थोड़ा ब्रीफ करना था। वो किया है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो हमें अपनी कम्युनिटी की मदद चाहिए होगी फ्यूचर में, तो उसके लिए सबको यहाँ ब्रीफिंग दी है। कतरा कतरा दरिया बन जाता है और यहाँ लोग ये चाहते हैं कि लम्हों में बरसों का काम हो जाए। सिर्फ कहना यह है कि एक खुदा कुरान और एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को ये चाहिए कि दामे दरहमे सुखने जहाँ जहाँ जिस मोड़ पर किसी की मदद कर सकते हैं जरूर करनी चाहिए, और फिर नेकी कभी रहेगा तो जाती नहीं है। तकरीब में अल मुस्तफा ट्रस्ट के मकसूद ने कहा कि लोगों से चंदा मांगना इंतहाई मुश्किल काम है, मगर जब ये काम अल्लाह की रजा के लिए हो तो इसमें अल्लाह की मदद भी शामिल हाल हो जाती है। पीर साहबजादा मोहम्मद अदनान कादरी ने कहा कि हमारी दुआ है कि इस इदारे से इल्म, अमन व आशती की रोशनी निकले और इससे लोगों की भलाई के काम हो। अल्लाह करे ये इदारा, ये एजुकेशन कम्प्लेक्स ऐसा इदारा बने जिससे तालीम की रोशनी, जिससे इल्म व आशती की रोशनी, जिससे अमन व आशती का पैगाम दुनिया में आम होता रहे। डॉक्टर खालिद सलीम ने कहा कि अल अजीज़िया एजुकेशन कॉम्प्लेक्स एंड जामे मस्जिद का प्रोजेक्ट लोगों की भलाई के लिए बहुत मुफीद रहेगा। इसके ऊपर इनका प्लान ये है कि देखो जो बिल्ड अ मॉस्क अलॉन्ग विद एजुकेशन स्कूल और कॉलेजेस बनेंगे, वहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। मोटरवे पुलिस के ऑफिसर मलिक इस्लाम खान ने कहा प्रोजेक्ट से तालीम में बेहतरी आएगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा काम है, और सारे शहर में ये हिस्सा डाल के ओवरसीज पाकिस्तानी जो कुछ भी कर रहे हैं, ये बहुत एक उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों के पास कोई सहूलत नहीं है, ना स्कूल है वहाँ पे, ना कोई यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे ख्याल में उस इलाके में बहुत बड़ी एक तरक्की आएगी। पीर मोहम्मद अदनान कादरी ने उनके वालिदैन और उन तमाम मुखय्यर हजरात के लिए खुसूसी दुआ की जिन्होंने ये ज़मीन अतिया की। सलीम साबरी, नुमाइंदा 92 न्यूज़, लंदन। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर मसूद अहमद खान ने अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द से मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़ों से आगाह किया। उनका कहना था अमरीकी सरमायाकार और कंपनियां पाकिस्तान में बेहतरीन मुनाफा बख्श कारोबार कर सकती हैं। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात में सफीर पाकिस्तान सरदार मसूद अहमद खान ने अमरीकी सरमायाकारों
और टॉप कंपनीज के नुमाइंदों को पाकिस्तानी मार्केट की अहमियत से आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी और मौशी एतबार से महल वक़ूफ़ अमरीकी सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मंजिल हो सकती है, जहां वो न सिर्फ पाकिस्तान में मुनाफा बख्श कारोबार कर सकते हैं बल्कि खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सनतें मुंतकिल करके खलीजी ममालिक, मगरबी एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी बरामदात कर सकते हैं। अमरीकी वक्त में मारूफ सरमायाकार कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नुमाइंदे शामिल थे। इस कंपनी में अमेरिका की सरफहरिस्त सरमायाकार कंपनी, जिनमें मुख्तलिफ बैंक, क्रेडिट यूनियंस, गवर्नमेंट से मुंसलिक कंपनियां शामिल थीं। अमेरिका में इंडियन सफारतखाने के बाहर भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान की तरफ से नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयानात देने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमानों ने शिरकत की। अहवाल जानिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान समेत बाज़ हिंदू सियासतदानों की तरफ से इस कायनात की सबसे बड़ी अजीम और मुकद्दस हस्ती के खिलाफ घटिया बयानात देने के खिलाफ अमेरिका में भी गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम के ज़ेर एहतमाम वाशिंगटन DC में इंडियन एम्बेसी के बाहर एक एहतजाज किया गया। मुजाहरे का एहतमाम वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने किया। एहतजाज में पाकिस्तान और कश्मीर के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश के मुसलमान भी शरीक थे, जिन्होंने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर शरका का कहना था कि नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने वाले भारतीय सियासतदानों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी फोरम पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये उम्मत मुसलमान का इज्तिमाई मामला है। चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम रहे, उसकी एक सूरत यही है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिस्पेक्ट दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर दिन की रिस्पेक्ट करने का हुक्म दिया है। I'm a Muslim from India and I know what it is. It is very bad because it is our Rasulullah is our life and everything for us, and we can give our life for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So as the Indian government, and we are asking the American government to tell the Indian government to stop all these atrocities against Islam. हम ना तो इंडिया के खिलाफ है और ना उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन ये जो इंडियन और मोदी की पॉलिसीज है खासकर अगेंस्ट मुस्लिम और खासकर जो उनकी जो एक वजीर ने अभी जो किया है, हम सारे नामूस रसालत के लिए जमा हुए हैं और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। तो आप पार्लियामेंटेरियन ने जो गुस्ताखाना बात की है, आप उनको फिल फौरन जो है मुअत्तल करें और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि हमारे इस्लाम के खिलाफ कोई बात करे। हमने इंडियन एम्बेसी के सामने एहतजाज किया और हम तमाम दुनिया के तमाम मज़ाहब के लोग बताना चाहते हैं कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए रहमत का पैगाम लाए हैं और हम सब का एहतराम करते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि तमाम लोगों को भी हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना चाहिए और इंडिया में बतौर ख़ास जो हालिया वाक़यात हुए हैं, इसको हम सख्ती से इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट को उन लोगों को जिन्होंने ये हरकत की है उनको करार बाकी सजा देनी चाहिए। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में भारत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और वाशिंगटन DC के अलावा न्यूयॉर्क और डैलस में भी बीजेपी की तर्जुमान की तरफ से नबी पाक के खिलाफ गुस्ताखाना ज़बान इस्तेमाल करने पर मुजाहरे किए गए। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत बयाना में ओवरसीज पाकिस्तानियों में हम आहंगी के फरोग और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल अकरम बाजवा की इस रिपोर्ट में। वियना में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में हम आहंगी पैदा करने और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ मलिक ज़ुबैर ने तिलावत कुरान पाक से किया।
استحकाम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट प्रोफेसर मलिक शौकत आवान, पाकिस्तान अंजुमन फैमिलीज़ के सदर अलहाज शेख वहीद अहमद कुरैशी, मिनहाजुल कुरैन ऑस्ट्रिया के सरपरस्त अलहाज ख्वाजा मोहम्मद नसीम, क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमा कलीम रफीक, चौधरी महमूद अहमद बरियार एडवोकेट, हाजी मलिक अमीन आवान और ऑल पाकिस्तान प्रेस क्लब ऑस्ट्रिया के चेयरमैन अलहाज अकरम बाजवा का कहना था कि दियारे गैर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। आज हमें तजदीद अहद करते हुए अपनी सियासी, समाजी और मजहबी वाबस्तगियों से बालातर होकर इन चैलेंजेस में पाकिस्तान और इदारों के साथ ताउन जारी रखना होगा। दुश्मन और इसके आलाकार मुल्क में इंतशार फैला दें और मासूम अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत और सिक्योरिटी अदारों का दस्त बाजू बनकर साथ देना होगा ताकि महाशी मसला कश्मीर, इस्लामोफोबिया इस जैसे दूसरे कौमी इशू को नजरअंदाज न होने दें और इनके हल के लिए पाक फौज और इससे जुड़े अदारों का दस्ते बाजू बनकर इस्तेकाम पाकिस्तान में अपना कलीदी किरदार अदा करें। हम सब को मिलकर इस मुल्क की सलामती के लिए जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए और खसूसन हम पाकिस्तान से जो बाहर बैठे हुए हैं, हमें माली, इखलाकी और हर किरदार से पाकिस्तान के लिए उसके इस्तेकाम के लिए हर कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करना चाहिए और हमें अपने मुल्क को इस्तेकाम के लिए, उसको मजबूत करने के लिए लड़ना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ मिलकर अपने मुल्क की बुराई करनी चाहिए। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम फौज के साथ हैं, हमेशा साथ हैं। फौज का एक वकार जो है हमेशा रहेगा और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर बंदा जो है ना फौज की इज्जत करता है। ये हमारी फौज है जो बॉर्डरों पे दिन रात पहरा देती है और हम रात को आराम की नींद सोते हैं। ये फौज के जिनके घर के बच्चे फौत होते हैं, शहीद होते हैं, उनसे जाके पूछिए कि हम क्या उन पे क्या गुजरती है। हम यहाँ बैठ के हम बात हमें आसानी से कह देते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है कि पाकिस्तान की हिफाजत करना। जब भी कोई फौजी हुकूमत वो आई ज़ेर इक़्तिदार तो उसने पाकिस्तान की सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ठीक किया, उसके नजरियाती सिस्टम को ठीक किया, उसकी खारजा पॉलिसी को ठीक किया और सबसे बढ़कर ये कि दिफा को ठीक किया। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के इदारे खुसूसन मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं और मुल्क की तामीर और तरक्की में भी उनका किरदार काबिल तहसीन है। तकरीब में शुरका का कहना था कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम, इस्लामोफोबिया और भारतीय रुकन पार्लियामेंट की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेगुनाह मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ एक भरपूर एहतजाज करेंगे। पाक फौज जो है वो एक ऐसा मुकद्दस इदारा है जो जिस पर इस किस्म की तनकीद करना इस वक्त मुनासिब नहीं है और उसके पीछे कोई बुनियाद नहीं है। सिर्फ ये एक मैं समझता हूँ कि खुली साजिश है जो हो रही है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारा फौजी इदारा जो पाकिस्तान की तरक्की और तामीर की जमानत है उसके बारे में ऐसा मजहूम प्रोपेगेंडा जारी और सारी रखा। यहाँ पर जो सियासत हो रही है पाकिस्तान की वो मेरे लिहाज में नहायत गैर ज़रूरी है और उसका कोई यहाँ पर इशू नहीं है, इसलिए कि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरफ से हम ऑस्ट्रियन पासपोर्ट ले लेते हैं और दूसरी तरफ से हम पाकिस्तानी सियासत करते हैं। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। फौज जो है हमारी वो एक सरमाया हमारे लिए। फौज को जो लोग बुरा भला कहते हैं ये उनकी गलत फहमी है, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फौज के हक में, हर इदारे के हक में, सुप्रीम कोर्ट के हक में हमें उठ कर खड़ा होना चाहिए। हम अपने मुल्क की फौज के लिए इकट्ठे हुए। हमारी फौज बहुत अच्छी है और फौज बहुत काम कर रही है। पाकिस्तान की फौज जो है वो दुनिया की 1 नंबर फौज है और इंशाअल्लाह हम पूरे अदारों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। साडी फौज ही साडा सरमाया है और ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ गलत ਗੱਲ बर्दाश्त ना करते। तकरीब के अख्ताम पर अलहाज शेख वहीद अहमद कुरैशी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए पाक फौज और अदलिया के लिए इज्तिमाई दुआ की। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया। टेक्सटाइल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला फ्रैंकफर्ट में 4 दिन जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पसीर हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए सनतकारों और ताजरों ने इस मेले में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी मसनूआत के साथ साथ कारोबार को नए दौर के मुताबिक आगे बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आगाही हासिल की।
पाकिस्तान से इस साल 130 कंपनीज इस आलमी मेले में शरीक हुई। तफसीलात जानिए फ्रैंकफर्ट से असफर मिर्जा की रिपोर्ट में। टेक्सटाइल मसनूआत से जुड़ा आलमी मेला 4 रोज फ्रैंकफर्ट में जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। कोरोना वबा से 3 साल के वक्फे के बाद शुरू होने वाले इस मेले में जहां दुनिया भर में सनतकारों ने शिरकत की, वहीं पर टाटाप और प्राइवेट तौर पर 130 से जायद पाकिस्तानी कंपनियां इस मेले में शरीक थीं। कौंसलर जनरल जाहिद हुसैन ने हेड ऑफ चांसरी शिफात कलीम खटक के साथ मेले में आए पाकिस्तानी ताजरों से मुलाकात की और उनसे तबादला ख्याल करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मौका पर कौंसलर जनरल ने पाकिस्तानी ताजरों को अपने इदारे की तरफ से हर किस्म के ताउन की पेशकश की। कौंसलर जनरल जाहिद हुसैन का कहना था कि मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान के ताजर इस आलमी मेले में तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूरोपियन मार्केट में पाकिस्तानी टेक्सटाइल की किस कदर डिमांड है। फ्रैंकफर्ट मेसे में ये पूरा हफ्ता होम टेक्सटाइल के नाम से एक एग्ज़िबिशन मुनक़िद की जा रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस एग्ज़िबिशन में पाकिस्तान के जो एग्ज़िबिटर्स हैं वो सेकंड लार्जेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, और ये ज़्यादातर जो होम टेक्सटाइल्स हैं उसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उनसे मुतल्लिक एग्ज़िबिशन है। इसमें 44 ऐसे एग्ज़िबिटर्स हैं जिनकी जो असिस्टेंस है मुख्तलिफ हवालों से वो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने की है। ओवरऑल जो हमारी तादाद है वो तकरीबन 130 है। कुछ देर पहले मैंने मुख्तलिफ एग्ज़िबिटर से मुलाकात की और मुझे बड़ी खुशी है कि पहले दिन होने के बावजूद एक बड़ी तादाद में कस्टमर्स जो हैं वो मुख्तलिफ बूथ्स के ऊपर मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा दिनों में ये तादाद मज़ीद बढ़ेगी। टेक्सटाइल एक्सपो में दुनिया की नामवर कंपनियों ने अपनी मशीनरी की नुमाइश की, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी मसनूआत पेश की। रेडीमेड मलबूसात, सैनिटरी गारमेंट्स, किचन गारमेंट्स और तिब्बी सनत में इस्तेमाल होने वाले मलबूसात लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों को सिलाई, कटाई और दीगर मशीनरी का अमली मुजाहरा करके भी दिखाया गया। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी। मारूफ अमरीकी फिटनेस कंपनी ने दुबई को अपना नया घर करार दे दिया। स्मार्ट और जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल हाई गियर फिटनेस डिवाइसेस बनाने वाली अमरीकी कंपनी और पाकिस्तानी ब्रांड एम्बेसडर मॉडल हनी अली की जानिब से मीट दी प्रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ अरब समाजी और कारोबारी शख्सियात राशिद अल आमरी, डॉक्टर उस्मान जफर, ग्रुप के चेयरमैन जैक आफनकी समेत पाकिस्तानी, भारतीय और अरब कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, सेहतमंद माशरा ही तरक्की याफ्ता माशरे की बुनियाद रखता है। इसी असूल पर कारबंद अमेरिका की मारूफ निजी फिटनेस कंपनी ने अमारात में डेरे जमा लिए। जदीद तरीन स्मार्ट फिटनेस डिवाइस को न सिर्फ अमारात बल्कि मशरक़े वुस्ता के दीगर ममालिक और जनूबी एशिया में मुतारफ करवाना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज इस हवाले से मैट द प्रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें अरब, पाकिस्तानी, इंडियन और दीगर कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ग्रुप के चेयरमैन जैक ऑफकी और CEO गैबार, UAE में अमेरिकी कंपनी के शराकतदार डॉक्टर उस्मान जफर और इदारे के दीगर ओहदेदारान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि जदीद हाई गियर टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल स्मार्ट फिटनेस डिवाइस का मकसद जिंदगी के मेयार को बेहतर बनाना है। हमारा मंसूबा मुख्तलिफ है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी प्रोडक्ट पहुँचाना चाहते हैं। जदीद फिटनेस प्रोडक्ट और ग्रुप के चेयरमैन जैक ऑफकी, CEO गैबार, डॉक्टर उस्मान, ब्रांड एम्बेसडर हनी अली, राशिद अल आमरी, यासीन बलोच और दीगर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हाई गियर को UAE की तमाम यूनिवर्सिटीज और सरकारी दफातर में मुतारफ करवाया जा रहा है, जिसके लिए MOU साइन होना शुरू हो गए हैं। We want to be part of the Emirates, and the way to do it is by our product and application, our partners, to be affordable for every house and to make the people here healthier. So this is our vision, and we hope and we want the Emirates to be part of this vision, and thank you everybody for helping us to bring this vision to everybody. Very unique product, having very few competitors on the market, and we are really proud to announce it here today, the launch, with the help of our partners, Microlink, and we are really excited basically to take it to the whole world with the support of partners and investors. It's a great honor for me to be brand ambassador for High Gear, and my full support with High Gear, and today I am announcing we are going to use this product in our next round also. We are going to show that. I hope to distribute this product in this region, and
forward to do more. This is the first time a fitness company in the technology space can bring a solution for the affordable market, and we believe and we know that High Gear is going to be the next generation and the future of fitness. اس کو یوز کر سکتے ہیں, so it saves a lot of time and you can focus on your entertainment and other activities. So it's a good product for the market and today's demand. مايكرولينك الشمولية هي عنوان الشركة, حيث لنا منتجات كثيرة في مجال الأمن والكاميرات ومجال الدخول الآمن وكذلك الهوم اوتوميشن وأكثر من مجال. فعند تعرفنا على شركة هاي جير بمنتجاتها التي تساعد على اللياقة وإيماننا العميق بسهولة استخدام هذه الأجهزة. उनका मजीद कहना था कि इस प्रोडक्ट को ब्लूटूथ हाई गियर मोबाइल ऐप से मुंसलिक किया जाता है, जिसके बाद मोबाइल ऐप इंस्ट्रक्टर के तौर पर आपको हदायत देती है. आपने कितनी देर कौन सी वर्जिश करनी है या कौन सी वर्जिश आपके लिए फायदेमंद है, ये सब कुछ मोबाइल ऐप गाइड करेगी. बहुत जल्द ये प्रोडक्ट पाकिस्तान, भारत समेत पूरे एशिया में मुतारफ कराई जाएगी. कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात. पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम ए लेवल के फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात के लिए ग्रेजुएशन 2022 की तकरीब का एहतमाम किया गया. तकरीब के मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई हसन अफजल खान थे, जिन्होंने तलबा की हौसला अफजाई की. तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में. बच्चे मुस्तकबिल के मामार होते हैं. इनकी अच्छी तालीम और तरबियत से ही माशरा परवान चढ़ता है. दुबई के एक निजी स्कूल की जानिब से ए लेवल के फारिग तहसील तलबा और तालिबात की ग्रेजुएशन तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल के एक्टिंग प्रिंसिपल मोहम्मद आतिफ, बोर्ड के गवर्नर हसन इब्राहिम होकल, मोहम्मद राशिद अशरफ, बिलाल अहसन, अहमद बलीदी शरीक थे. जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई हसन अफजल खान थे. तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ. तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर का कहना था कि वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं. उनका तालीमी इदारा गुज़श्ता कई सालों से तुलबा की तालीम और तरबियत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है. आज उन वालिदैन के लिए फ़ख्र का दिन है जिनके बच्चे ए लेवल कर चुके हैं. आज इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट स्कूल दुबई का ये ग्रेजुएशन इवेंट था. माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा और 60 ग्रेजुएट हुए ग्रेड 13 में ए लेवल्स में. यहाँ पे पेरेंट्स थे, स्टाफ थे और हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. तो वी रियली थैंकफुल to Atif and the staff, mashallah, to have performed so well. After joining this institution, I did not think of going anywhere else. I am getting a lot of respect from parents. Parents are very affectionate. Students are very affectionate. And of course, the management and the principal are great mentor. So I think means I have never ever felt that there is something which is lacking in this institution. I have learnt a lot. I have learnt a lot in this, and of course, I am guiding my team. I am guiding my teachers. I'm really thankful to my school community, my parents, my students, and most of all, my management, the governors, and our chief guest, Mr. Hassan Afzal Khan, the Consulate General. They have really graced the occasion by attending this event, and we're really happy that we have made it till 2022. The class of 2022, the graduates, they are the real champions, they are the real winners, because they are going out, passing out year 13 with the pride that though they had spent 2 years in pandemic. तंग तो बहुत करते हैं, लेकिन जिस तरह एक माँ होती है वो अपने बच्चों को समझाती भी हैं और डांटती भी हैं, इसी तरह मैं भी डांटती थी. and they were very nice about it. वो थोड़ा सा नाराज़ भी होते थे, but at the end they learned many things. मैं ईयर 13 की स्टूडेंट हूँ. मैं अभी इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल से ग्रेजुएट हुई हूँ और मैं स्कूल की डिप्टी हेड गर्ल भी रह चुकी हूँ, यहाँ की हेड गर्ल भी रह चुकी हूँ और अब मैं स्कूल की स्टूडेंट लीडरशिप एम्बेसडर हूँ. और आज हमारे यहाँ ग्रेजुएशन है और हमें बहुत मज़ा आया है. ये हमारी ज़िंदगी का बहुत यादगार लम्हा होगा. मैं इस स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट स्कूल में 14 साल से हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज ग्रेजुएशन का इवेंट किया है. इट वाज वेरी फन. वी हैड ऑल आवर टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एवरीवन. जब सब दोस्तों के साथ रहते हैं, मिलते हैं और फिर अभी जाना होता है तो काफ़ी दुख होता है. प्रिंसिपल और हेड ऑफ ए लेवल मुसरत हुसैन की जानिब से एक खास पैगाम वालिदैन और तुलबा के लिए पहुँचाया गया और उन्होंने स्कूल की सालाना कारकर्दगी की तफसील से आगाह किया. मेहमान खुसूसी हसन अफजल खान ने तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए. इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ तलबा की मेहनत और कामयाबी को सराहा बल्कि असातिज़ा की भी खूब हिम्मत अफजाई की. इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट स्कूल बहुत अरसे से इस्टेब्लिश है
اور آج ان کے اس فنکشن میں آ کے بہت خوشی محسوس ہوئی. ماشاءاللہ بہت ہی ہائی کوالٹی ایجوکیشن, یہ میجورٹی ہمارے پاکستانی بچے ہیں جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ان کو بڑی ہائی کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اور آپ سب کے اس چینلز کے توسط سے میں ادھر کے تمام گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اپنے یہ 12 سال جو انہوں نے محنت سے مکمل کیے. آخر میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے مہمان خصوصی اور گورنرز کو تعریفی اسناد پیش کی گئیں اور مہمانوں کی عمدہ لذیذ روایتی کھانوں سے تواضع کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات.